वी सफ़र मोर इन आर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। एक आदमी था सेनेका जिसने बात कही थी। इसका मतलब होता है कि वी कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक। हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वी ऑलवेज हैव अ एग्जैजरेटेड रिएक्शन इन आवर ब्रेन टू दैट थिंग। Even if it's a small thing or it's a big thing, it's an exam or it's related to someone in our life who has left us, we always think in a negative manner about that and तिल का ताड़ बन जाता है दिमाग में. Now if you're listening to this video right now, you're not the first person who is going through this and you're probably not the last. This is an issue which is faced by every person in our society and especially this generation which is hooked to social media. Because this anxiety and overthinking is drawn by the actions we take on our social media accounts. What we feed our brain by our eyes, that is what reproduced by our brain in the thought process. Now let me tell you a story over here, the story of a post. What do they actually do before they have to make a post? You click around 30 to 40 photos of yourself. किसी भी दोस्त को बोल के किसी से खिंचवा लिया. उसके बाद out of all those photos, you choose one photo and you discard all the rest. And that is the best photo you will choose. You won't choose a bad photo. सबसे बढ़िया वाला you will choose and still the process is not over. Now you will go to filters and you will apply the filters. You will put it in the location so that you get as many likes as you can. You will tag as many friends as much possible and also the people you do not like so that they can see you just to prove them something कि we are happy. And उसके बाद जब ये सारा हो जाता है you post that photo. You put it in your status. You share it with your friends, you ask them to like it, you'll get a number of comments, you get very happy. You try to tell yourself कि you don't care, but actually you do. Now you might be thinking कि मैंने ये story क्यों सुनाई? मतलब what is the purpose of this with related to anxiety and overthinking? Now let me tell you something. ये जो post वाली बात थी ना, you are not the only one who's doing this. Every single person on social media is doing this. And they'll keep on doing this. And you know what the problem over here is? Ki whatsoever we see on the social media, it's not the truth. It's all a fake. Lies. Just like filters. Filters are fake. They try to make a person look more beautiful than they actually are without even realizing that the real beauty lies in the heart and not the face. People are not posting their failures. People are not posting their bad photos. People are not posting about their bad days or their struggles or their financial issues or their breakup issues. People are only posting about the things that are good, that make them feel happy and the people to accept them in the society. And उन अच्छी चीज़ों को देख के हमारा दिमाग भी चाहता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो. अब हमारे दिमाग को ये समझ नहीं आता है कि उनकी लाइफ में भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हैं. दे आर इन द रैट रेस टू प्रूव एवरीबडी कि दे आर लाइक अ तीसमार खान ऑफ आई डोंट नो व्हाट. अब ये चीज़ें देख के हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आने लग पड़ती है. हम सोचने लग पड़ते हैं कि यार हमारी लाइफ इतनी खराब क्यों है, इतनी बुरा क्यों है, इनकी लाइफ इतनी सही है. दे लुक सो परफेक्ट, दे हैव सो मेनी क्लोथ्स, दे पुट ऑन अ फैंसी मेकअप, दे आर हैविंग द परफेक्ट पार्टनर. हाउ डू यू नो दैट दे आर हैविंग अ परफेक्ट पार्टनर और द बेस्ट क्लोथ्स? माइट बी दे आर स्पॉन्सर्ड बाय समबडी. Might be they're wearing their friends' clothes just to get a better picture to post on the social media. Might be they're having the most troubled relationship in the entire world and they're just posting it to show to their friends that we are the happy and best couple in the entire world. They're just trying to show it off on the social media and you are eating that bait. Your anxiety is a reason of that overthinking. It is not easy to stop the thoughts, but you know what is easy? It's easy to switch the thoughts. You cannot just stop your brain from thinking something and observing something. Your brain is supposed to work unless and until you're dead or paralyzed. But what you can do is you can switch your thoughts. Switch your thoughts to something productive and progressive. जब भी दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि यार overthinking हो रही है, I'm thinking about someone or something and this thing is killing me and I have to stop this. It's your choice what you're thinking, man. ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है. तू क्या सोच रहा है, तू क्या चाहता है. अगर तू चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा, तो बस ये फालतू बातें सोचना बंद करना पड़ेगा. अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार एकदम से कैसे बंद कर दें, थिंग्स डोंट हैपन सो फास्ट, आई स्टिल फील स्टक इन माई ब्रेन, मतलब थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज I hope them they would work. I'm not happy. I'm not feeling like doing all these things what you're asking me to do. मतलब मेरे से नहीं होगा यार. Choices, priorities, वो तो तेरे हाथ में है ना. तू क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो तो तेरे हाथ में नहीं है. चल मैं मानता हूँ, पर तू क्या देख रहा है और क्या कर रहा है वो तो तेरे हाथ में है ना. सोशल मीडिया पे जिन लोगों को जो चीज़ें देख के तेरे को नेगेटिविटी आती है वो चीज़ें और उन लोगों को देखना बंद कर दे, उनको ब्लॉक कर दे.
जिन लोगों से बात करके तेरे को डाउन फील होता है उन लोगों से बात करना बंद कर दे। जो चीजें करके तेरे को खुशी महसूस नहीं होती है ना अंदर से, और तू बस इसलिए करता है क्योंकि मेरे सारे दोस्त करते हैं एंड वो बहुत कूल है, पर वो चीज तेरे को कूल बनाती है पर तेरे को हैप्पी नहीं बनाती, तो तेरे को क्यों करनी है? तू खुद ही रीजन है अपनी ओवर थिंकिंग का। तेरा माइंड तो वही प्रोसेस करेगा ना जो तू उसको फीड करेगा। जब तक तेरे अंदर जो फ्लॉज है ना, जो भी कमियां हैं, उनको तू एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक तू लाइफ में वहीं फंसा रहेगा जहां तू फंसा है, और तू यही सोचता रहेगा कि यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ता हूँ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, मैं भी यही इशू फेस करता था थोड़े टाइम तक अपनी लाइफ में। मतलब कुछ भी बात हो जाए बस ओवर थिंक करना एंड एंग्जाइटी, एंड बस ऐसे लगता था कि यार अपना सीन खत्म होने वाला है। यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू अबाउट दिस? मेरे को सोल्यूशन मिला, अभी वही अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं लाइफ में। नो मैटर व्हाट एज यू आर, एट व्हाट पॉइंट यू आर इन योर लाइफ, नेगेटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी देयर। आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ दिस वन सिंपल क्वेश्चन, कि ये चीज़ के बारे में सोच के आज से 5 साल के बाद क्या मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला है? एंड यू नो इफ़ द आंसर इज़ अ नो, अ बिग नो, कि ये चीज़, ये इंसान के बारे में सोच के या फिर इस चीज़ के बारे में सोच के मेरे को 5 साल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, देन आई नो व्हाट द फक आई नीड टू डू। जस्ट क्विट दैट थॉट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, हाउ इज इट्स दैट ईजी टू जस्ट क्विट अ थॉट? स्टार्ट डूइंग समथिंग। यू नो ऐसे ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी कब आती? जब इंसान वेला होता है, हिज फ्री डूड, जब कुछ होता नहीं ना लाइफ में करने को, कुछ पढ़ना नहीं है, डिग्री हो गई है, लाइफ में कुछ एम नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, डेली के गोल्स नहीं है, टास्क नहीं है, तो लाइफ में ना कुछ वो क्रेज नहीं रहता है, और ब्रेन को क्या फिर टाइम मिल जाता है, फुर्सत मिल जाती है ओवर थिंकिंग करने की। तो इसको हक भी तो तुम ही दे रहे हो ना ओवर थिंक करने का। जस्ट स्टील अवे दैट पावर ऑफ अ ब्रेन टू ओवर थिंक। इट्स योर ब्रेन एंड यू आर इन कंट्रोल। तेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी वो तेरे हाथ में है। अगर तू किसी और इंसान को अपने ऊपर पावर दे रहा है, दैट इज वॉट लीड्स टू ओवर थिंकिंग। देयर एक्शंस, देयर फोटोज, देयर वर्ड्स आर कॉजिंग यू टू ओवर थिंक। तो इसका मतलब तो डायरेक्टली ये नहीं कि तेरी लाइफ तेरी कंट्रोल में है ही नहीं। अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ला, अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में ला, तभी तेरा माइंड तेरे कंट्रोल में आएगा। अ पर्सन हु हैज मास्टर्ड हिज माइंड is the person who can achieve anything in his life.